Good evening, everyone. I, Tanushri Datta Gogoi, Ehsas Woman of Guwahati, am pleased to welcome you all to the first ever session of Kalam, an initiative of Prava Khaitan Foundation here in Guwahati. We are grateful to Oil India Limited for their valued support in making today's session possible and to our hospitality partner Vivanta Guwahati for being associated with today's session. This evening is especially delightful as we come together in the company of a widely known and highly respected author, Anand Vijay, who is a chronicler of politics, literature, and cinema. As we begin, I would like to share a few words about the foundation. Prava Khaitan Foundation actively promotes the arts and cultural exchange with an emphasis on inclusivity and reflection. Its work brings together literature, education, performance, and conversations around gender equity with a strong focus on supporting and uplifting women. Through a wide range of thoughtfully designed initiatives such as author interactions, book launches, literary gatherings, panel discussions, and intimate festivals, along with music, dance, and theatre performances, the foundation continues to create welcoming platforms where ideas are shared, voices are heard, and creativity is celebrated. Now, allow me to introduce you all to today's guest for the evening. Anand Vijay is an author, senior journalist, and columnist who has been actively engaged in the field of journalism for over 2.5 decades. He has written extensively on politics, literature, and cinema and is widely recognized across the country. Vijay holds a BA Honours in History, an MMC in Journalism, and a postgraduate diploma in Business Management. So far, he has authored 14 books. Among these, Prasangvash, Kalohal Kalah Mein, Vidya Ka Vinas, Bollywood Selfie, Loktantra Ki Kasauti, and Marksworth Ka Ardha Satya has been particularly well received. His book, Ameti Sangram, has been published in English under the title Dynasty to Democracy. Vijay has been honored with the National Film Award, Swarna Kamal, the prestigious Maharana Mewar Award of Rajasthan, and the Dr. Father Kamil Bulke Award from the Government of Bihar. Currently serving as an associate editor at Dainik Jagran, Vijay has been announced as the recipient of the highly prestigious Ganesh Shankar Vidyarthi Award, one of the most esteemed honors in Hindi journalism. Recently, he was awarded the Kalinga Literary Book Award for his book OTT Ka Mayajal. A warm welcome to you, sir. In conversation with the author is Aparajita Pujari. She is an award-winning writer, poet, translator, and film critic with over 2 decades of experience in literature, cinema, and cultural communication. She has led landmark multilingual translation projects on icons like Dr. Bhupen Hazarika, Srimanta Shankar Deva, and Lachit Barphukan, bringing regional narratives to national prominence. As a curator and festival director, she has conceptualized and led significant film and literary festivals across India. A member of FIFRESCI and a respected jury voice at major film platforms, her works seamlessly bridge art, heritage, and contemporary discourse, reflecting a deep commitment to cultural advocacy and storytelling across borders. I would now like to invite Sir and Aparajita Pujari to please come. We look forward to a great conversation. Over to you, Ms. Aparajita. As we belong to cinema, so arranging properties and microphone, ये तो बनता ही है. Namaste everyone, and a very good evening to all of you. I express my deep gratitude to Khaitan Foundation, our co-sponsors, hospitality partner, and all the dignitaries present here for taking out the precious time to, literally speaking, investing on us. So I cannot just promise, but I hope, truly hope, that this session
proves to be worth your time. As our ma'am has already introduced Anand ji is known to me because of cinema only. तो जर्नलिज्म तो वो बाद में आती है. So we are mostly talking about cinema today because cinema is something or someone that I literally call Bay. You know, cinema comes and whispers like, call me Bay. Some youngsters are there, they can really connect to this word, that Bay, what does it means? Well, today we live in a world, in a time where stories, cinema, don't just entertain us. They inform us, influence us, and sometimes cinema divides us too. OTT platforms, new media, and cinema, they are not anymore separate worlds. They are deeply interconnected ecosystem that actually influences and shapes our thoughts, how we think, what we think, how we are going to respond, and even how we are going to feel. So those people who invest their time on digital media or social media, mostly in new media, they probably can connect to what I say. And talking about cinema, our country, our nation, since the time of Raja Harishchandra to today's algorithm-driven OTTs to yesterday's mega release Dhurandhar 2, Indian cinema and our continent has, undergone a very drastic change and dramatic shift. And to talk about this shift, to decode and navigate the journey of time, today we have with us an unparalleled voice of Indian cinema, not Indian cinema, cinema in general, and also he is an expert on OTT. आप लोग देख ही सकते हैं, मेरे पास एक बुक है, सर की नई किताब, ओवर द टॉप, दैट मीन्स OTT का माया जाल. So I think we are also going to discuss about this book, and I find this book very attractive, symbolic also, like I find Anandji's writing. So Anandji, welcome to Guwahati, welcome to the land of Ma Kamakhya. बहुत धन्यवाद अपराजिता जी, थैंक यू सो मच. और सबसे पहले मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने आप लोगों से मिलने का एक अवसर दिया है. इतने अच्छे मौसम में गुवाहाटी में आप लोग समय निकाल कर आए, आपका हृदय से धन्यवाद आप सबका. अपराजिता जी तैयार हो गई मुझसे बात करने के लिए. इट्स एन ऑनर फॉर मी बिकॉज जो आज की पीढ़ी है और जो आज के लोग हैं उनके सोचने का तौर तरीका बिल्कुल अलग है. मैं जेन जी नहीं कहता हूँ, मैं इसको जेन नेक्स्ट कहता हूँ. हर पीढ़ी में एक जेन नेक्स्ट होता है. जेन जी तो पता नहीं कहाँ से चला गया, और चल गया तो चल गया. यहाँ तो भेड़ चाल है. हम सोशल डिस्टेंसिंग भी कह देते हैं. एक तरफ कहते हैं मैन इज़ ए सोशल एनिमल और दूसरी तरफ कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि भारत में कभी संभव ही नहीं है. आप फिजिकल डिस्टेंस कर सकते हो, सोशल डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता. लेकिन अब चला दिया वेस्ट ने तो हम उसके पीछे चल पड़े. सिनेमा में मैं आप जो चाहें जैसा चाहें वैसी बातचीत कर सकते हैं. हम लोग OTT हमारे दिल के बहुत करीब है. और मैं थोड़ी अपनी सेल्फ प्रमोशन कर लेता हूँ. ये जो बुक है ओवर द टॉप OTT का माया जाल, ये किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई OTT यूनिवर्स पर पहली किताब है. अभी तक कोई किताब OTT को ध्यान में रखते हुए नहीं आया है. तो मुझे लगता है कि इसमें कमियां भी होंगी, क्योंकि जब कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो बोलना नहीं आता उसको, वो अपनी माँ से सीखता है. इसी तरह अगर किसी यूनिवर्स में कोई किताब आती है तो वो अपनी बात कह तो देते हैं, लेकिन वो फिर जब ग्रो करते हैं समय के साथ साथ, इसका दूसरा एडिशन आ गया, अब तीसरा भी आने वाला है, एंड इट्स बीइंग ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश आल्सो. तो मुझे लगता है कि OTT पर आप बात करें, और आपने धुरंधर की बात की. लकीली डे बिफोर यस्टरडे आई सॉ दैट फिल्म, एंड इट्स
मुझे लगता है कि मुझे I must congratulate the director Aditya Dhar for taking the bold step of making this movie of 4 hours. पहले तो मैं लेंथ पे ही जाता हूँ, क्योंकि मेरा नाम जोकर जब इस भारत में आई थी तो लेंथ की वजह से ही जनता ने उसको नकार दिया था। अरे बहुत बोरिंग है यार, बहुत लंबा है यार। हमारे जैसे जो समीक्षक थे उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की और कहा कि ये अपने समय से आगे की फिल्म है, जनता ही नहीं समझ पाई। ये वही समीक्षक थे जिन्होंने 1975 में शोले जब रिलीज़ हुई थी तो ये लिखा था, शोले जो भड़क न सका, और वो ऐसा भड़का कि 50 साल बाद तक भड़क रहा है। तो मैं समीक्षक होते हुए आपसे आग्रह करता हूँ कि अपने पर समीक्षक आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता है। वो फिल्म के बारे में, अब जैसे धुरंधर पे कैटेगोरिकली मैं देखता हूँ कि ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच अगेन आई कॉल इट इंटरनेट मीडिया, आई डोंट कॉल इट सोशल मीडिया। अगर वो सोशल मीडिया तो हम प्रिंट वाले, जैसे हम प्रिंट वाले हैं, जैसे टेलीविज़न वाले इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, वैसे वो इंटरनेट से चलने वाली मीडिया है। तो सोशल क्यों हो गई? हम लोग एंटी सोशल हैं क्या? तो मुझे लगता है कि बहुत सारे दो क्लियर कट डिवाइड दिख रहा है अपराजिता जी, अगर आप देखें धुरंधर को लेके भी, 1 में भी और 2 में भी बहुत हिंसा है। रणवीर सिंह की, अब पता नहीं इनमें से कितने लोगों ने धुरंधर 1 देखी या 2 देखी कि नहीं? 2 देख ली मैम? अच्छा, 1 तो अब नेटफ्लिक्स पर भी है, इसलिए बहुत सारे लोग उसको। तो मुझे लगता है कि फिल्म में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है स्टोरी टेलिंग, एंड भारत इज ए लैंड ऑफ कथावाचक्स। कहीं भी देखिए आप, वेस्ट से हमको सीखने की ज़रूरत नहीं है स्टोरी टेलिंग। हमारे यहाँ तो मतलब घर घर में कथावाचक है। जैसे ही आप अवस्था में पहुँचते हैं, आप अपने बच्चों को कहानी सुनाने लगते हैं, और इतने रोचक तरीके से सुनाते हैं कि वो सो जाता है सुनते सुनते, इतना खुश हो जाता है, कहानी में डूब जाता है बच्चा और वो सो जाता है। ऐसे ही अगर हमारे फिल्मकार हों, बीच में वो कुछ आ गया था ना, इंडिपेंडेंट सिनेमा, पैरेलल सिनेमा, पता नहीं क्या कौन कौन सिनेमा कह दिया था। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, आप बनाओ उसको भी, लेकिन फिल्म तो बेसिक है मनोरंजन। आप फिल्म देखने जाते हैं, यू वेंट टू सिनेमा हॉल, स्पेंड $1000 ऑन ए मूवी, तो आपको लगता है कि आप क्या, मतलब चलो पिकनिक भी हो जाए, खाना भी खा लें, अच्छा हंसी खुशी। जब मैं परेशान होता हूँ, या जब मैं पजल्ड होता हूँ, या जब मैं ओवरबर्डन होता हूँ, मैं सलमान खान की मूवी लगाता हूँ। परसों मैंने बैक टू बैक सलमान खान की 3 मूवी देखी, दबंग 2, जय है, और एक और राधे। उसकी वर्स्ट मूवी देखिए आप, उसको दिमाग ही मत लगाओ उसमें यार। सिनेमा इज, बट ठीक है, जो लोग सिनेमा को इसलिए देखने जाते हैं कि उनको, आई एम ए ग्रेट एडवोकेट ऑफ टीचिंग सिनेमा इन यूनिवर्सिटीज़। ये भारत का दुर्भाग्य रहा कि यूनिवर्सिटीज़ में जितने लोग रहे, जो यूनिवर्सिटीज़ चलाने वाले रहे, जो एजुकेशन पॉलिसी वाले लोग रहे, उन्होंने सिनेमा को गंभीर विषय नहीं माना। लेकिन वो बाइफरकेट करना पड़ेगा हमें सिनेमा को। एक तरफ जो सिनेमा को लेकर स्कॉलर्स हैं, और एक जो हमारे जैसे जनता सिनेमा देखने जाती है। हमारा मेन एम तो ये रहता है कि हम, लेकिन आदित्य धर की मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ कि 4 घंटे कहानी ऐसे चलती है जैसे दादी नानी सुना रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, कहीं रुकता ही नहीं। मुझे तो सोचने का ही मौका नहीं मिला कि उसमें हिंसा है, ये गाने भी नहीं है। मतलब 2-3 पुराने गाने बजते हैं जब वो मारपीट कर रहा होता है, तम्मा तम्मा, और ये हिंदी गाने बैकग्राउंड स्कोर में चलता है। लेकिन 4 घंटे की फिल्म, ये साहस है। इस साहस की दाद देनी चाहिए ऐसे समय में जब लोग, इंस्टाग्राम वाली पीढ़ी जो बैठी है पीछे, जो कहती है, जिसके बारे में विदेशी लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, विदेशी लोग कहते हैं कि जेन जी का कंसंट्रेशन स्पैन इज गेटिंग 6 सेकेंड्स। कैसे पता चला भाई? ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं, जब अमेज़ॉन का चीफ यहाँ आता है तो कहता है कि भारत में आपका मुकाबला किससे है, तो वो कहता है भारतीयों की नींद से है, कि वो सोए नहीं, अमेज़न पे वेब सीरीज देखें।
और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो 6-6 घंटे का वेब सीरीज कौन देख रहा है? क्या हमारी अवस्था के लोग देख रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं? बच्चे भी देख रहे हैं, तो उनको आइडिया ही नहीं है। वो ये सब मार्केटिंग का टूल है कि 6 सेकेंड टाइम स्पैन हो गया है, ये है। बट एक बात ज़रूर है, मैं रोक नहीं रहा हूँ, मतलब रुक नहीं पा रहा हूँ कहने से, कि वो जो इंस्टाग्राम पर देखने, वो कंटेंट ओबेसिटी का शिकार बना रहा है। हमें मालूम नहीं होता कि अगली रील क्या आएगी, लेकिन हम उसको स्क्रॉल करते चलते। दैट मेड मी कंटेंट ओबीज। हम ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं। वो एक अलग विषय है, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जो 6 सेकंड की बात अभी हो रही है, उसमें 4 घंटे की फिल्म बनाना और उस पर बम्पर ओपनिंग 282 करोड़ 2 डेज में। अभी मेरे पास आया उसका 2 दिन की ओपनिंग 282 करोड़ है। मुझे लगता है कि ये पहली फिल्म होने जा रही है कि 2 फिल्म 2000 करोड़। और आदित्य धर ने और उसकी टीम ने एक जॉनर क्रिएट किया, उसने एक स्पेस क्रिएट किया। आप 370 देख लो, उसकी नहीं है। 370 देख लो, बारामूला देख लो, बारामूला उसकी टीम के एक लड़के ने बनाई है, और अब ये 2 फिल्में। तो एक ऐसा जॉनर क्रिएट हुआ, और इस जॉनर में बस एकदम उसने जनता की वो नब्ज पकड़ी कि आप सुनना क्या चाहते हो। ये नया हिंदुस्तान है, ये डरता नहीं है, घुसता भी है, मारता भी है। तो जो बहुत चालू किस्म के डायलॉग हैं, वो कुछ अश्लील शब्द भी उसने उठाए हैं जो बातचीत में हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं, उसको बना के जनता को ऐसा लग रहा है कि ये तो हमारे आसपास की चलने वाली घटना है। तो जैसे पहले के ज़माने में जब कोई हीरोइन आती थी, जैसे पूनम ढिल्लन आई थी, तब लोग कहते थे नेक्स्ट डोर गर्ल लग रही है ये इसलिए नेक्स्ट डोर गर्ल कह के मार्केटिंग की गई थी कि लोगों को लगे कि ये अपने घर की लड़की है, इसकी फिल्म देखने चलो। वो कोई नेक्स्ट डोर नहीं थी, वो बस एक मार्केटिंग का था। जैसे आजकल एक नई वाली हिंदी चली है, वो कुछ नहीं है उसमें, वो सिर्फ मार्केटिंग है मैम। तो मुझे लगता है कि जब हम सिनेमा पे बात करते हैं, और इस मुगालते में कम से कम मैं तो नहीं हूँ, और आपसे भी अनुरोध पूर्वक कहता हूँ कि ये कभी मत सोचिएगा कि सिनेमा में समाज सुधारने के लिए वो लोग का फिल्म बना रहे हैं। दे ऑलवेज सी द राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जैसे घर के पुरुष और स्त्री अगर खाना खाने जाते हैं, तो विद ड्यू रिगार्ड मैम, महिलाएं हमेशा राइट साइड देखती हैं कि ये डिश मंगा रहे हो, इसका कितना मूल्य है ना। और पुरुष कहता है जब आए ही हो तो यार छोड़ो ना, उसको खा लो जो खाना है। ये हर परिवार में होता है। उसी तरह तो फिल्म वाले जो होते हैं प्रोड्यूसर्स, दे आर लाइक आवर मातृशक्ति। दे ऑलवेज सी द राइट साइड ऑफ द मेन्यू कि फायदा कितना हो रहा है। वो इन्होंने राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया, अब राजा हरिश्चंद्र वाला जमाना चला गया मैम। वो फिल्में कुछ और बनती थी। वो पीरियड राजा हरिश्चंद्र से शुरू होके, और मुझे लगता है कि मदर इंडिया के पहले की फिल्म तक ही आता है। मदर इंडिया से फिल्मों का रूप एकदम चेंज हो जाता है, भारत की फिल्मों का रूप। बस आगे और पूछेंगे तो नहीं तो मैं ही बोलता रहूँगा। मुझे तो, मैं प्रोफेसर का बेटा हूँ, इसलिए जब तक घंटी नहीं बजती तब तक मैं रुकता नहीं हूँ। ये तो अच्छी बात है सर। हमारा देश ही आपने जैसे बोला कि वी आर स्टोरी टेलर्स, तो आप इतने अच्छे से मतलब बोल रहे थे, बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए, फिर भी मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि अपराजिता ने जो क्वेश्चन तैयार करके लाया था उसको फोल्ड करके रख दिया इसने। Okay, like many other, I am also a die-hard fan of Aditya Dhar since the days of Uri. तो मुझे तभी लगा था this person is a genius in marketing. तो if that person knows marketing, he is also going to know, grasp that attitude of his contemporary audience, right sir? तो इसी फिल्म को धुरंधर फर्स्ट मैंने देखी है, सेकंड वन कल देखूंगी दोपहर को। तो धुरंधर फर्स्ट में भी यही टिकट मिल गया मैम आपको? जी मुझे मिल जाता है, आई एम रेगुलर। तो हाँ, तो ये जो नब्ज है वो पकड़ लेता है आदित्य। तो इसी कारण शायद जो जेन नेक्स्ट है, जेन जी इज़ ऑल्सो मार्केटिंग टूल, तो जेन नेक्स्ट को पता है कि मतलब
इसके बाद क्या रील आएगा जैसे सर ने बोला, तो इसमें भी ये क्यूरियोसिटी को नेविगेट किया है और प्रोत्साहन दिया कि इस चैप्टर के बाद धुरंधर में कौन सा आएगा, और सरप्राइजिंगली जो आप सोचते रहते हो कि ये आएगा वो नहीं आता, अलग कुछ आता है। और जिस तरह से जैसे कि रेट्रो म्यूज़िक को यूज़ किया गया है, दैट प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग दिस फिल्म ए ग्रैंड सक्सेस। तो आदित्य धर हमें भी थोड़ा मतलब शेयर कर सकते हैं, बिकॉज वी आर प्रमोटिंग दिस फिल्म लाइक एनीथिंग, राइट। तो सर ने मदर इंडिया की बात की, उसके बाद दैट वाज अ डिफरेंट टाइम, एग्जैक्टली टोटली डिफरेंट फ्रॉम टुडेज़ वर्ल्ड। एंड यहाँ पे सर आपने जो कॉमर्शियल सक्सेस की बात की, मैं बताना चाहूँगी कि इस साल लाइक लास्ट 6 मंथ असम में कोई भी फिल्म ऐसे चल नहीं रही है। देयर आर मैनी रीजन्स। तो ये धुरंधर का आना और ये सक्सेस होना, ये हमारे जो हॉल्स हैं, द हॉल ओनर्स, द चेन्स, उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। बिकॉज देयर आर मैनी पीपल वॉकिंग इन द सिनेमा हॉल्स, दे यूज टू कॉल मी कि मैम क्या होगा, देखिए फिल्म नहीं चल रहा है, एक ही शो आ रहा है, एक ऑडियंस आ रहा है, बार बार फिल्में कैंसिल हो रही है। तो फिल्मों का चलना, कॉमर्शियली सक्सेसफुल होना, ये हमारे इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। So there should be more Aditya Dhars in our cinema industry who brings stories that really compels us to sit for like 3 or 4 hours. सर्टेनली मैम, जैसे आप बात कर रहे थे स्टोरी टेलिंग की, हम लोग बात कर रहे हैं, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर पोएट्स, कविता जब आप सुनते हैं तो कहते हैं इरशाद इरशाद, फिर से वो पंक्ति सुनाओ। और कहानी क्या करती है, आगे क्या, अब क्या, अब क्या। जैसे शेर आ गया तो बच्चा कहता है अपनी दादी से, तो क्या किया शेर ने। तो बचपन से ही कहानी आगे बढ़ाती है और कविता पीछे ले जाने का प्रयास करती है। इसलिए जो हम स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं ना, जिसमें आप कह रहे हैं कि इंडिया नीड मोर आदित्य धर, अभी बॉलीवुड में एक बड़ी बहस चली थी इस पर, अनुभव सिन्हा ने, सुधीर मिश्रा ने, इन सब लोगों ने एक बहस चलाई थी कि ऑडियंस क्यों नहीं आ रहा है सिनेमा हॉल में। जो लोग बहस चला रहे हैं उनको अपनी फिल्में देख लेनी चाहिए, उसका जवाब उसमें मिल जाएगा उनको। चाहे 80 देख लो, चाहे अफवाह देख लो। मैं उनके फिल्म की आलोचना भी करता हूं, क्यों कि फिल्म में जब टू मच ऑफ आइडियोलॉजी, टू मच ऑफ ज्ञान, टू मच ऑफ हेवी डोज ऑफ सोशल इश्यूज, तो जनता उब जाती है। वो तो घर में ही परेशान है भाई, वो सिनेमा हॉल परेशान होने नहीं जाएगा। पता नहीं ये क्यों नहीं समझते हमारे फिल्म का। घर में भी परेशान है, सिनेमा हॉल में भी देखने गया तो वही देख रहा है कि यार 20 मिनट में एक रेप हो रहा है, 20 मिनट में एक फिर वो से, सिस्टम भी अच्छा है, सिस्टम भी हेल्प कर रहा है, सिस्टम घुसखोर भी है। जिन चीज़ों से वो बाहर परेशान है, सिनेमा हॉल के अंदर भी परेशान होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा मैम। हम न्यूज़ चैनल में काम करते थे तो मैं अपने प्रोड्यूसर से ये पूछता था कि भाई तुम्हारे घर में जब पहली बार टीवी खरीदा गया था तो क्या कहा गया होगा, क्या आप लोग बताइए, जब टीवी खरीदने जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं, आप बताओ अपराजिता, क्यों खरीदा टेलीविज़न पहली बार? मैंने खुद से कभी नहीं खरीदी। अरे पापा जानते होंगे। लोग कहते ना मन नहीं लगता है, खरीद लो मन लगेगा। ये कोई नहीं कहता होगा, मुझे लगता है बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये कहते होंगे कि न्यूज़ देखने के लिए टीवी खरीद लो। तो न्यूज़ को भी इस तरह से दिखाना चाहिए कि उसमें मन लगे। हमारा ये था कि न्यूज़ में भी कैसे आप अपने ऑडियंस को जोड़ सकते हो कि वो हुक्ड रहे 2 मिनट भी। 2 मिनट अगर किसी न्यूज़ को देख लिया तो उसका काम हो जाता है। न्यूज़ देखते ही लोग 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं है, स्विच ओवर कर जाते हैं दूसरे चैनल। मैं आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अब कुछ और हो गया हो तो मुझे नहीं मालूम। तो जब हम फिल्मों की बात कर रहे थे, एक तो कहानी पर यह कहना था, दूसरा मैं बहुत आसानी से मदर इंडिया को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मदर इंडिया एक ऐसी फिल्म थी जिसने भारत के फिल्मों की तासीर ही, इट चेंज द डायनेमिक्स ऑफ द इंडियन सिनेमा।
कैसे? यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन्होंने मदर इंडिया देखी होगी, लेकिन सर याद नहीं होगा कि मदर इंडिया का ओपनिंग फ्रेम क्या है. व्हाट इज द ओपनिंग फ्रेम ऑफ मदर इंडिया? आई एम टेलिंग यू सर, ओपनिंग फ्रेम is the हसिया and हथौड़ा which depicts the चुनाव चिन्ह of certain communist party. यहां से एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, महबूब खान साहब ने, कि यह फिल्म कम्युनिज्म विचारधारा से प्रेरित है. वेरी बोल्ड, मैं मानता हूं और मैं उनकी ईमानदारी को सैल्यूट करता हूं. कुछ लोग होते हैं जो छिपकर वार करते हैं. और मदर इंडिया का लास्ट सीन याद करिए आप लोग. नरगिस सुनील दत्त को गोली मार देती है, वो गिरता है खेत में और धरती उसके खून से लाल हो जाती है. कनेक्ट दिस सीन टू द फर्स्ट फ्रेम ऑफ द फिल्म and think about the ideology of that certain communist party which says सत्ता बंदूक की नली से निकलती है और क्रांति से पूरी धरती लाल हो जाती है. ये प्रश्न मैं हर सभा में जानबूझकर उठाता हूं कि महबूब खान ने इस पे काम भी हो रहा है. जेएनयू में one student is doing PhD on this film on this angle only. तो मुझे अच्छा लगता है कि आप खुल के बात कर रहे हो. अब एक फिल्म आई थी मुक्काबाज, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी या नहीं देखी होगी, चली नहीं थी फिल्म क्योंकि वो एक बहुत महान निर्देशक की फिल्म थी. उसमें एक डायलॉग आता है, वो आएंगे पीट पीट कर तुम्हारी हत्या कर देंगे और भारत माता की जय के नारे लगाकर चले जाएंगे. अब ये अच्छा है या महबूब खान अच्छा है? चॉइस इज योर्स. तो सिनेमा सटल तरीके से आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने का माध्यम बना आजादी के बाद से. ख्वाजा अहमद अब्बास, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कह रहा हूं, दिस ऑल इज रिकॉर्डेड. देवानंद की जीवनी आई है, रिमेंबरिंग समथिंग, है ना, उसमें उन्होंने लिखा है कि ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने भारत सरकार के कहने पर कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित सारे फिल्मकारों को लेकर रूस गए थे और उसके बाद वहां क्या क्या हुआ उसका पूरा वर्णन है और लौट के उनको क्या करना था इसका भी वर्णन है. पूरा हवाई जहाज किराए पे लेके, आज नहीं, ये 60s की बात है. तो फिल्म एक ऐसा माध्यम बन गया है जिसमें आप अपनी विचारधारा को प्रोपोगेट भी कर रहे थे. मैं इसलिए इतना सुनाया कि आदित्य धर पर भी यही आरोप लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी की विचारधारा को प्रोपोगेट कर रहा है, क्योंकि इसमें नोटबंदी भी है, इसमें फेक करेंसी भी है. फेक करेंसी 1 में भी था, इसमें भी है. तो सर्टेन तरीके से मुझे लगता है कि फिल्में विचारधारा को बढ़ावा देती हैं. लेकिन अगेन फिर वहीं आता हूं मैं, कहानी कैसे कहते हैं. आपकी स्टोरी टेलिंग में वो दम है या जो विचारधारा लोकप्रिय है उसके आधार पर फिल्मकार बना देते हैं क्योंकि उनको तो राइट साइड ऑफ द मेन्यू देखना है. जब कम्युनिस्टों की विचारधारा इस देश में चल रही थी तो वैसी फिल्में बन रही थी. अब राइटिस्टों की विचारधारा चल रही है तो ऐसी फिल्में बन रही है. अल्टीमेटली मैं फिर वही कहता हूं कि चॉइस इज ऑफ द दर्शक. जो देखने वाले हैं चॉइस तो उनकी ही है. अब अगर पूरे देश की कंडीशनिंग कम्युनिज्म की तरफ, सोशलिज्म की तरफ, नेहरूवियन मॉडल की तरफ, इंदिरा गांधी की तरफ है, फिल्मकार वैसी ही फिल्म बनाएगा. वो भी हमारी सोसाइटी का ही आदमी है, वो कहीं चांद से नहीं आया है, एलियन नहीं है वो. तो और वो मुनाफा कमाने के लिए है. तो आदित्य धर जैसा आपने कहा कि अच्छा मार्केटियर है,
उसने देश की नब्ज को पकड़ लिया कि अगर ये करोगे, जैसे अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में आया था ना कि अलग अलग गुमनाम शख्स ने आतंकवादी को मारा, वो पूरा सीन है इसमें। और उस पे हॉल में इतनी तालियां बजती है, इतनी तालियां बजती है कि मुझे तो हिम्मत वाला फिल्म का दौर याद आ गया, जब श्रीदेवी और जितेंद्र की हिम्मत वाला आई थी। चवन्नी अठन्नी फेंकते हुए देखा है हमने। ता थैया हो, जब वो गाना गाती थी श्रीदेवी तो चवन्नी अठन्नी लुटाते थे, वैसी सीटियां बज रही इसमें। चूंकि इसमें गाने नहीं, इसलिए पैसे नहीं फेंके जा रहे हैं, या जनता होशियार हो गई, पैसे क्यों बर्बाद करना। वो तो सिनेमा हॉल वाले का होगा, श्रीदेवी के पास तो जाएगा नहीं। या QR कोड नहीं है ना। तो मजेदार है फिल्मों की दुनिया अपराजिता, अगर आप देखें तो। राहुल गांधी ने भी कुछ कमेंट किया था धुरंधर के ऊपर, दैट इट इज़ ए प्रोपेगेंडा फिल्म। हाल ही में किया है। राहुल जी पर कमेंट करने की मेरी क्षमता मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं उन पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ यही बोलना चाहती थी कि अगर उस टाइम में क्या है उसको हम लोग, जैसे कि आप जिन जिन फिल्म का देखिए, जनता का मूड आप समझिए। जैसे ही मैंने कहा कि राहुल गांधी पर टिप्पणी करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, सब लोग हंस पड़े। अच्छा फिल्मकार होगा तो इस दृश्य को अपनी कहानी में पिरो देगा, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है कि जनता क्या देखना चाह रही है, और उसको तो पैसे से मतलब है कि टिकट खिड़की पर असम में सिंगल स्टोरीज, सिंगल थिएटर की जो सिनेमा हॉल हैं, पता नहीं है कि नहीं है, मैं बिहार का रहने वाला हूं, वहां तो सब बंद हो गए लगभग, 1-2% कहीं है, सब जगह मॉल मल्टीप्लेक्स बन गए। तो यहाँ पे है, तो उसको वहाँ लाने का यही है। एक अच्छा डायरेक्टर वही होता है जो जनता को ऑब्जर्व करता है, उसके रिएक्शन को देखता है कि कैसे आप किस चीज़ पर हमें जनता 200 रुपये का टिकट ले लेगी। दैट्स इट। वो जमाना चला गया कि वी शांताराम दहेज फिल्म बनाते थे और उनकी फिल्म देख के बिहार विधानसभा में दहेज विरोधी कानून पर बिल आ जाता था। वो उस दौर की फिल्मों को देख के मुझे हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति याद आती है, द ग्रेट पोएट, अमिताभ बच्चन के डैडी। ये अब समझो बच्चन साहब का ये परिचय हो गया है। तो अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, है ना। तो वो ना पीने वाले रहे, ना मधुशाला रही। तो कहाँ वैसी सिनेमा, उसी में एक आदित्य धर आ गया है, धूमकेतु की तरह चमक रहा है। देखिए कोई और, मैं आपकी बात, आपके मुंह में घी शक्कर की 2-4 आदित्य धर और आ जाएं तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, जनता पैसा देने को तैयार है। आज कोई ये कह रहा है कि 200 रुपये का टिकट है, एक फिल्म देखने जाते हैं हमारे 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं, पानी 75 रुपये का मिलता है। ये सब जब आपका कंटेंट कमजोर होता है ना, तब ये सब चीजें लोगों के ध्यान में आती हैं। जनता को अगर आप इंटरटेन कर दोगे तो जनता आपको झोली भर के पैसे देगी। उसी तरह जैसे दादा साहब फाल्के को राम कथा की सीरीज बनाने पे पैसे मिलते थे, जब वो बोरियों में सिक्के भर के बैलगाड़ी पे ले जाते थे। वो दौर देखा है भारत में। अब भी जनता पैसे देने के लिए तैयार है सिनेमा वालों को। कोई मल्टीप्लेक्स, कोई पॉपकॉर्न की कीमत नहीं पूछ रहा है। अभी जब 1200 करोड़ का बिजनेस हो गया पिछले साल, तो सिनेमा अच्छा बनाइए, इंटरटेन करिए, बाकी आपको आइडियोलॉजी जो करना है करते रहिए। Well, when I try to promote some good films on social media, at least one single person will comment, what about the ticket price? We are not going to, invest this much of money and time on this movie. Then why should we go to the big screen? We'll prefer OTT. OTT पे आ जाएगा, 3 महीने बाद देख लेंगे. But I think cinema is all about big screens. और ये धुरंधर, फिर से दोहरा रही हूँ, धुरंधर ने प्रूव किया है। बहुत सालों बाद हम लोगों ने हॉल पे देखा था, जो देश के लिए नारा लगता है। हम लोग तो ऐसे पॉलिटिकल फिल्म में या कभी इवेंट होता है तब गणतंत्र दिवस उसमें देखा करते थे, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान फिल्म स्क्रीनिंग में ये फिल्म जब एंड होता है तब पूरा ऑडियंस जाके क्या बोलता है, क्या हाउस द जोश। ये करवाने के लिए कोई ना कोई पैदा होता ही है,
it takes time, you know, because time is changing, and that person should, the storyteller should, you know, that नब्ज जो पकड़ते हैं वो पकड़ना चाहिए along with marketing. मैं बार बार marketing की बात बोल रही हूँ because I have been following आदित्य धर्स, you know, marketing tools. और जो ये मतलब लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि रूल बना दिया गया था, ये फिल्में नहीं चलेंगी, ये वो उसको पूरा ख़त्म कर दिया है आदित्य धर के धुरंधर ने, उनके स्किल्स ने. तो मैम मार्केटिंग क्यों, सैयारा में कौन सी मार्केटिंग हुई आप बताओ? कोई मार्केटिंग, कंटेंट में दम होना चाहिए बॉस. सर सैयारा में जो म्यूजिक है दैट वर्कड एज ए मार्केटिंग टूल. अब सैयारा ने क्या किया, उसके मार्केटिंग को देखिएगा तो उसने अखबार में छोटे छोटे विज्ञापन दिए और उसने रिवर्स प्रमोशन किया, मतलब गांव से प्रमोशन होकर शहर की ओर प्रेशर बना उस पर. वो एक अलग केस स्टडी है कि पहले छोटे छोटे विज्ञापन दिए, जो पुराने जमाने में फिल्मों के विज्ञापन आते थे, सैयारा ने वही किया. सारे लोकल वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स में उसका ऐड दिया छोटा छोटा. उसके बाद इंस्टाग्राम पे लोगों ने उसको उठा उठा के प्रमोट करना शुरू किया. लेकिन उसमें एज सच मार्केटिंग नहीं है जैसा आप इन्वर्टेड कॉमा में धुरंधर में देख रही हैं, है ना. तो कंटेंट में दम होगा तो चलेगी. एकमात्र फिल्म इस देश में बनी है जिसका डायरेक्टर कोई नहीं है, उसका नाम है लव स्टोरी. आप देख लो, उसका डायरेक्टर का नाम ही नहीं है फिल्म में. लव स्टोरी का डायरेक्टर राहुल रवेल थे. राहुल रवेल का राजेंद्र कुमार से झगड़ा हो गया. राजेंद्र कुमार उसमें अपना नाम भी डलवाना चाहते थे. राहुल जी ने कोर्ट से केस लड़के अपना नाम हटवाया और कहा कि इसमें कोई डायरेक्टर नहीं होगा. इकलौती फिल्म है, बगैर किसी डायरेक्टर के वो फिल्म है, लेकिन चली, गाने चले. एक जमाना होता. अब के आसिफ ने क्या मार्केटिंग की होगी मुगले आजम की, आप बताओ. कंटेंट में दम था ना. इतने ही दिनों तक फिल्म बनी वो कि लोग भी परेशान हो गए पढ़ पढ़ के. उस समय जो न्यूज़ मैगजीन्स आती थी कि के आसिफ फिल्म बना रहे हैं, के आसिफ फिल्म बना रहे हैं, इस सेट पे इतना खर्चा हो गया, उस सेट पे इतना खर्चा हो गया. लेकिन एक बार देख के लोग निकलता है तो कहता है ओ वाओ. वो जो शीश महल में डांस का सीन सीक्वेंस है वो लोगों के दिमाग में छपा हुआ है. और वो कोई एक पीढ़ी की मोहताज नहीं है कि जिसने उसी, मेरे फादर ने देखी थी तो मुझे याद नहीं, मुझे भी याद है, और ये देखेंगे इनको भी याद रहेगी, इनके बच्चों को भी याद रहेगी. तो कंटेंट में दम होना चाहिए. आदित्य के कंटेंट में भी दम है, मोहित सूरी के कंटेंट में भी दम है. आप दर्शकों को बेवकूफ मत समझो यार. ये ओटीटी वाले दर्शकों को बेवकूफ समझते हैं. और आपने बहुत सही कहा. मैं हमेशा कहता हूं सिनेमा के लिए सबसे बड़ा खतरा ये 8 इंच का मोबाइल है. 3 महीने में देख लेंगे, वहां आ जाएगा. अरे क्यों आ जाएगा भाई, आप अभी जाओ ना, देख के आओ. लेकिन देख के आने के लिए हमारा मन तो प्रेरित करे कोई कि हम सिनेमा हॉल में देखने जाएं. 80 देखने तो नहीं जा सकता कोई भाई. 80 का इंतजार ओटीटी पे ही किया जा सकता. तारे जमीन पे बना दो, जाएंगे लोग हॉल में देखने. उस बच्चे की पीड़ा को समझने के लिए सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा आपको. वो जब कैमरा क्लोज टाइट बनाता है फ्रेम उसका, और उसके चेहरे पर वो सवाल हल न कर पाने की जो पीड़ा दिखती है, वो 8 इंच के मोबाइल पे नहीं दिख सकती. वो डिसलेक्सिया का शिकार बच्चा है, वो उसकी तड़प है कि वो नहीं बता पा रहा है. इसको डायरेक्टर ने पकड़ा है. अब आपने वर्षों तक ये दिखाया कि एक हीरो है 800 लोगों को मार डालता है भाई. वो सलमान खान की एक फिल्म में राधे या पता नहीं कौन सी फिल्म, अकेले पूरी सेना को मार दिया उसने. अब थोड़ी तो विश्वसनीयता रखो भाई. मतलब एकदम ही मूर्ख ना समझो हमको, हम भी थोड़ा दिमाग रखते हैं. तो जब दर्शकों को आप होशियार समझोगे, दर्शकों का ऑब्जर्वेशन आपका सही होगा, तो फिल्में अच्छी बनेंगी. जी, ओटीटी की बात निकली है तो सर ने किताब लिखी है, हम लोगों ने, मैंने पहले ही दिखाया था. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर टू काइंडली talk something about this book, and I also pick some books from here. बुक तो शायद आनंदिता जी सबको दे ही रही हैं. हाँ. So anyone who would like, they can take a copy from there. वो बाद में. OTT अभी बहुत ही मतलब
क्या करते हैं, बहुत ही मतलब OTT का वही हाल है जो 2007, 8, 9 में न्यूज़ चैनल का होता था। तब हम लोग कहते थे भी कि 16 साल की उम्र बड़ी खतरनाक होती है। उसमें तो ऐसा नहीं है कि वो जिस प्रोडक्ट के लिए भी खतरनाक होती है, अगर आदमियों के लिए खतरनाक होती है। तो अभी OTT को टाइम लगेगा मैच्योर होने में। धीरे धीरे मुझे लगता है कि OTT मैच्योर होना शुरू हो गया है। अभी एक सीरीज़ आई है मिसेस देशपांडे, माधुरी दीक्षित की सीरीज़ है। उसमें बहुत अवसर थे गंदगी करने के, बहुत अवसर थे उसमें सेक्सुअलिटी दिखाने के, लेकिन डायरेक्टर ने बहुत कायदे से उसको रोका और मतलब रोक के सारी बातें भी कह दी। दैट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल फॉर द OTT वेब सीरीज कि आप किस तरह से डिपिक्ट कर सकते हो उसको। यहाँ तो लोगों को लगता है कि झूठ मूठ की हिंसा, फालतू के गाली गलौज, फालतू की यौनिकता, मतलब वो एक शुरू में कोई डायरेक्टर आया था, उसने टॉपलेस दिखा दिया। अरे अभी नहीं हम लोग तैयार हैं मानसिक रूप से, हमारा समाज नहीं तैयार है इसके लिए। जब हो जाएगा तो कर लेंगे हम भी। एक जमाना था फिल्मों में रेप सीन में एक लिजर्ड आता था और एक फतिंगे को खा जाता था, उसी में लोग समझ जाते थे कि ये दैट समथिंग हैपेंड। उससे बढ़ी ना आगे कहानी। तो हमारा समाज तैयार नहीं है अभी OTT के पश्चिम की नकल के लिए। मुझे लगता है ये धीरे धीरे उनको समझ में आएगी। अब एक वेब सीरीज देखी मैंने जिसका नाम है मुंबई डायरीज। मुंबई डायरीज, मुंबई में जब बाढ़ आई थी उसकी कहानी है सर, अगर आपने देखी हो तो उसमें एक लड़की एक प्रेग्नेंट लेडी को लेके जा रहे हैं और उसको सिजेरियन बेबी होता है। तो क्या जरूरत है कि कैमरे को आप एकदम क्लोज ले जाओ कि कैसे उसका स्टमक कट किया जा रहा है और कैसे खून से लथपथ बच्चा निकाला जा रही। कौन दर्शक देखना चाहता है इसको? कौन से रियलिज्म की बात हो रही है भाई? तो मुझे यही सब चीजें परेशान करती है। एक वेब सीरीज आई थी घोल, घोल या घोल, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन, घोल, ऊ साइलेंट है उसमें ये हाथ काट दिया और कटा हुआ हाथ यहां छटपटा रहा है। सेम लाइक इन धुरंधर कि सर काट लिया और काट के फुटबॉल खेल रहा है। लेकिन इतना स्मार्टली आदित्य धर ने किया था कि यह खबर आई थी कि पाकिस्तान में किसी का सर काट लिया गया था और तालिबान ने वो गला रेतते हुए वीडियो जारी किया था, तो लोगों को याद है वो। तो आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए कुछ दिखाने का। तो मुझे लगता है कि OTT में अभी बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन OTT के चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। और जिस प्रकार से OTT पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है, कोई नियमन नहीं है, कोई सेंसरशिप नहीं है, उसने और इसको थोड़ा भ्रष्ट किया है, करप्ट किया है। अब आप सोचिए 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना था। 18 दिसंबर के आसपास नेटफ्लिक्स पर दो सप्ताह पहले रिलीज होके फ्लॉप हो चुकी फिल्म अन्नपूर्णी दिखाई जाती है। अन्नपूर्णी में क्या दिखाया जाता है? प्रभु श्री राम मांसाहारी थे। है वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख, कोई मना नहीं करता इसको, लेकिन टाइमिंग ऑफ दैट फिल्म इज इंपॉर्टेंट। उसमें हिंदू मुसलमान, अगर हिंदू, कितनी हमारी संगीत परंपरा है जिसमें गुरु मुस्लिम है, शिष्य हिंदू है, एक से एक। अब बिस्मिल्लाह खान साहब को के सामने सर ऐसे ही झुक जाता है, हमें याद ही नहीं पड़ता कि वो मुसलमान भी हैं भाई। लेकिन आप हमें क्यों बताना चाहते हो कि उसका गुरु मुसलमान था, इसलिए वो लड़की सेफ थी, इसलिए वो नमाज पढ़ रही है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या खान साहब ने कभी किसी को नमाज पढ़ने के लिए कहा? मुझे नहीं पता। खान साहब की जुगलबंदी देख लीजिए आप, या अमजद अली खान साहब की जुगलबंदी देख लीजिए आप, किसी हिंदू के साथ देख लीजिए। और उनको तो वो शहनाई वादक खान साहब को जब दिल्ली बुलाया गया था कि आप आके राष्ट्रपति भवन में बजाइए, उन्होंने कहा हमारे लिए कोई राष्ट्रपति नहीं है, हमारा बाबा ही राष्ट्रपति है। बाबा मतलब बाबा विश्वनाथ। और हर सुबह मैं वहां बजाता हूं शहनाई, पहले उन्हीं के दरबार में,
उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हम किसी अटल फटल को नहीं जानते हैं। वो बनारसी अंदाज में बोला उन्होंने। और इसका बड़ा बड़ा बहुत बहुत ही रोचक किस्सा है। जब भारत रत्न देने की बात आई तो अटल जी ने कहा, ये लिखा है किसी ने, अटल जी ने कहा कि उनसे पूछवाया जाए, उनको बुलाओ। लता जी को और बिस्मिल्लाह खां साहब को एक साथ मिला भारत रत्न। तो कहा कि लता जी को बुलाओ और बिस्मिल्लाह खान को बुलाओ, तो हम यहाँ मिलना चाहते हैं। तो लता जी को संदेश गया, लता जी आई, अटल जी से मिलके चली गई। बिस्मिल्लाह खान साहब को भी संदेश गया कि आप आइए। ये बहुत जगह पे ये किस्सा है। तो उस समय अटल जी के एक सहयोगी को जब ये संदेश प्राप्त हुआ कि खान साहब कह रहे हैं हम किसी के दरबार वरबार में नहीं जाते हैं, हम तो बाबा के दरबार में बजाते हैं और बाबा के दरबार में ही बजाएंगे। तो जो अटल जी के सहयोगी उन्होंने अटल जी को थोड़ा मिर्च मसाला लगा के कहा कि ये आदमी ठीक नहीं है, आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा है और कह रहा है कि हम किसी के दरबार में नहीं जाते, होंगे प्रधानमंत्री अपने घर के, लगा दिया। और तो हम नहीं जाएंगे। उनका मन था कि लता जी को अकेले मिल जाए। अटल जी ने अपने अंदाज में, आंख बंद थी उनकी, आंख खोली और कहा असली भारत रत्न तो यही है। और लता मंगेशकर के नाम के ऊपर लिखा बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न और दस्तखत कर दिया। ये होता है। तो हम थोड़ा अलग चले गए आपकी फिल्म से, क्योंकि थोड़ी कहानी वहानी हो जाती है तो अच्छा लगता है सुनने में। अभी हम कहानी कला की ही बात कर रहे थे। तो OTT में यही है मैम, बहुत चैलेंजेज हैं। और OTT ने हमारी भाषा को, सभी भाषाओं को, सिर्फ बुराई नहीं है OTT में, अच्छाई भी है। एक साथ अगर 123 कंट्री में कोई वेब सीरीज रिलीज होती है इन द लोकल लैंग्वेज, आप सोचो असमीज में कोई वेब सीरीज बने और वो 123 कंट्री में AI के माध्यम से ट्रांसलेट होके दिखाई जाए, तो कितना बड़ा ऑडियंस हमें मिल रहा है। जरूरत इस बात की है कि हमारे लोग इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग करें। 123 कंट्रीज में अगर एक साथ दिखा रहा है, उसका अगर फुटप्रिंट है तो इट्स ह्यूज। तो इस अब और सारे आप देखो, सारे लैंग्वेजेस का विस्तार मिला है। इंडिया की जितने लैंग्वेजेज हैं, यहाँ से लेके आप तमिल तक चले जाओ, असमिया से लेके तमिल तक, बीच में हिंदी भी आती है, बांग्ला भी आती है, तेलुगु, गुजराती, मराठी सब आती है। उसको बंगाली भी आती है मैम। तो बांग्ला नेशनलिज्म वाले थोड़े बहुत वो होते हैं, वो बुरा मान जाते हैं अगर बांग्ला का नाम न लीजिए आप, तो बहुत संवेदनशील होते हैं। तो इन सारे भाषाओं को आप देखो कि हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा हिट्स तमिल में मिलते हैं। और आप तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री कितनी छोटी है, लेकिन कितना अच्छा कंटेंट है। कांतारा देख लो, आप जमीन से जुड़ी हुई कहानी उठा के ले जाओ ना, लोक देवता की। असम में कितनी कहानियां हैं, यहाँ की हर गांव में कहानी है। एक फिल्म आई थी कथा नदी, that was very popular and did really well in theaters also. That was also about our folk tales. मैं कह रहा हूँ ना, हमारे आपकी कहानी बताओ, ये विदेशी फिल्मों की नकल मत करो, मत मरवाओ 400 लोगों को एक व्यक्ति से। वो स्टीफन स्पीलबर्ग को छोड़ दो, मत बनाओ। यहाँ राजेंद्र कुमार चलेंगे, यहाँ राज कपूर चलेंगे। राज कपूर ने सचिन भौमिक से एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि भारत में एक ही कहानी है, उसको चाहे जितने तरीके से आप कह लो, वो कहानी है राम थे, सीता थी, रावण आ गया। कहानी सिर्फ इतनी है। और आप हिंदी की कोई फिल्म देख लो, वो रामायण, उसमें आपको रामचरितमानस या रामायण दिख ही जाएगा। कोई भी फिल्म, शोले में भी दिख जाएगा आपको। विश्वामित्र गए थे ना राक्षसों से बचाने के लिए कि अपने 2 बेटे दे दो, संजीव कुमार गए थे ना दोनों को लाने। आधार वही है हमारा, हम उसको, हुनर हमारा है कि कैसे हम बदल देते हैं उसको। कभी खुशी कभी गम देख लो, वो ऋतिक रोशन और वो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान वाली जो फिल्म है, तो बहुत सारी फिल्मों में ऐसा मिलता है। तो
OTT मिला जुला के मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत है। OTT को कुछ अनुराग कश्यप टाइप, सॉरी मैं उनका नाम नहीं लेता, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वो, क्षमा करेंगे, वो उन जैसे बड़े डायरेक्टर्स ने बर्बाद किया OTT को। एक्चुअली OTT मतलब गाली क्या भारतीय समाज में सिर्फ गाली ही दी जाती है क्या? मैं ये, आप लोग तो बहुत आदरणीय हैं, आप सर, आप लोग को छोड़ के मैं बच्चे जो बैठे पीछे इनसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे बच्चे इतने खराब हैं कि वो आपस में बातचीत सिर्फ गाली में ही करते हैं? ये इनका अपमान है। तो मैं यही कहता हूं, ये भी देख के चिढ़ते हैं इसको कि यार ये, और क्या नहीं, हमारा समाज ऐसा ही है, और गंभीर होके बोलेंगे फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना होती हैं। अरे ऐसा आईना मत दिखाओ जिसमें तस्वीर ही मेरी बदसूरत दिखे। मुझे तो ऐसा आईना दिखाओ जो AI वाला आ गया कि आजकल अपनी तस्वीर भी अच्छी दिखाता है। Actually, OTT is the one of the significant reason why South Indian films are doing well. उन्होंने पकड़ लिया, मतलब एक बार वो थिएटर में रिलीज़ कर दिया और उसके बाद तुरंत OTT पे। तो दिस इज़ द रीज़न वाई मलयालम फिल्म्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन पैन इंडिया। लेकिन सर ये OTT की बात कर ही रहे हैं तो इट रिमाइंड्स मी ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ दैट is actually literally an 18+ सीरीज सेक्रेड गेम्स। तो उसको आप ये झट से पॉपुलर हो गया, उसको डाउनलोड कितने लोगों ने, कितने 1000 लाख लोगों ने किया पता नहीं, और उसको फॉलो करके उसका जो सक्सेस मंत्रा है उसके बाद ये सब कालीन भैया वगैरह आए। लेकिन there are films, there are series that become popular which are strong in content। तो कालीन भैया ये सब देख के तो लगता है कि लोग बात करते हैं, एक डायलॉग में अगर मतलब 6-7 वर्ड्स हों उसमें 5 वर्ड्स तो गाली होंगे, ऐसा लगता है। और उसके बाद जो पॉपुलर हुआ है पाताल लोक, उसको तो मतलब कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आई डोंट प्रिफर दैट काइंड ऑफ सीरीज़ that actually promoted sexual harassment even on children. Every episode ended with that kind of harassment that actually promoted that kind of abusive languages and content. So OTT की बात आ रही है तो censorship की बात भी आए कि censorship लागू होना चाहिए कि नहीं चाहिए सर? I am a fierce advocate of opposing the censorship on any medium. But there is a big but. आपको अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए। हम क्या दिखाने जा रहे हैं? अगर आप स्वयं, जैसे भारत सरकार ने इसके लिए सेल्फ रेगुलेशन छोड़ा हुआ है, अभी सेल्फ रेगुलेशन का नतीजा दिख रहा है हमें कि लोग नहीं कर रहे हैं। एक सीरीज आई थी रस भरी, है ना, द ग्रेट हीरोइन ऑफ आवर टाइम, क्या नाम है उसका, स्वरा भास्कर, द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीमेल एक्टर ऑफ आवर टाइम। और देखिए उसमें स्कूल के बच्चों के सामने टीचर के कैसे कैसे सीन है, मतलब एडल्ट भी नहीं। और आपने जिस सीरीज का नाम लिया, और वो इतनी महान नायिका हैं कि उन्होंने ट्वीट करके बोला कि एक दिन मैं देखी, पापा मेरे आके बैठ गए और मैं सीरीज देख रही थी, मैं पापा के साथ बैठ के नहीं देख पाई। तो मेरे दिमाग में प्रश्न उठा और मैंने उस पर लिखा भी कि अगर तुम अपने पापा के साथ बैठ के इस सीरीज में नहीं देख पा रही हो तो दूसरों से कैसे अपेक्षा कर रहे हो वो अपने पापा के साथ बैठ के इस सीरीज को देख ले खुद। और आपने जिस महान ट्रायोलॉजी का नाम लिया सेक्रेड गेम्स का, उसमें सेक्रेड तो कुछ है नहीं, है ना, सिर्फ गेम ही गेम है। वो एक, अब मुझसे क्यों कहवाती हैं मैं, वो एक मानसिक रूप से दिवालियापन का सार्वजनिक प्रदर्शन है। अपनी कुंठाओं को, अपने सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को, अपनी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको दिखाने के लिए, मैंने बहुत विस्तार से इस किताब में लिखा है इस बारे में, सेक्रेड गेम्स पे भी लिखा है और पाताल लोक पर भी लिखा है, जब कुतिया का नाम सावित्री होता है। कितना हमें, हमारे सेंसिबिलिटी का कितना ध्यान रखा जाता है ना। और
अब तो क्या करेंगे, आज से थोड़ी रखा जा रहा। मीरा नायर ने फायर में भी यही सब किया था। Well, it reminds me of आमिर खान ने अपने कुत्ते का नाम शाहरुख रखा था। अब ये तो उन दोनों के आपस का प्रेम है, मैं क्या कह सकता हूँ। कोई तीसरा हो तो सलमान रख ले। महारानी बहुत अच्छा सीरियल था, लेकिन भटक गया सर लास्ट में। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बट इट इज नॉट इंटायरली ऑन फैक्ट्स। बिहार पॉलिटिक्स ऐसा ही था इन द 90s, और वो लालू यादव और राबड़ी देवी की कहानी क्लेम की गई है। हाँ, लेकिन वो भटक गई, उसमें बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें दिखाने लगी कि लास्ट वाला तो बिल्कुल ही है, इसमें महारानी पर भी लिखा है मैंने 2 सीजन पर, तीसरा अभी नेक्स्ट एडिशन में आ रहा है, उसमें आ रहा है। तो वो एकदम से भटक गया सर। महारानी में क्या हुआ, अब लालू यादव का लव अफेयर दिखा दिया है किसी केंद्रीय मंत्री से, और करवा चौथ मनवा दिया बिहार में, जिसका लेना देना नहीं है करवा चौथ का बिहार से। भाई, करवा चौथ इज ए फेनोमेना ऑफ सेंट्रल उत्तर प्रदेश मेनली। वो यश चोपड़ा की फिल्मों के बाद पूरे देश में मनने लगा। उसके पहले, और यश चोपड़ा जी की देने के पुरुष भी करवा चौथ करने लगे, क्योंकि गर्लफ्रेंड कहती है बॉयफ्रेंड से कि अबे तू मेरे लिए नहीं कर रहा, मैं तेरे लिए क्यों करूंगी। तो सिनेमा इस हद तक हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट भी करती है ना। तो यही सब चीजें हैं। और सिगरेट गेम्स में मत बुलवाओ मुझसे। इट्स ए वर्स्ट सीरीज, और उसी की देखा देखी करण जौहर ने भी 5 एपिसोड का एक बनाया था, विच इज मतलब वर्स्ट से भी वर्स्ट है। लास्ट स्टोरीज। हाँ, लस्ट स्टोरीज नाम था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उससे लोगों के मन में एक इच्छा हो जाती है ना कि देख ले तो हिट मिल जाएंगे उसको, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेता। कितना घटिया था वो। उनके तो नाम में भी स्पेलिंग गलत रहते हैं हमेशा। कितना घटिया था वो लस्ट स्टोरीज, और मतलब इतना घटिया कि उसको तो बैन कर देना चाहिए। मतलब उसने तो परिवार नाम की संस्था की धज्जियां उड़ा दी भाई। उसने सास ससुर के सामने बहू, मतलब आप सोच नहीं सकते। इट्स अ वर्स्ट ऑफ द काइंड ऑफ स्टोरी। करण जौहर तो मेरे फेवरेट टॉपिक हैं, मतलब आई कैन डिकोड हिम आपके लाइक फेवरेट हो सकते हैं मैम, हमारे फेवरेट इन द सेंस। करण जौहर इज ए वेरी गुड फिल्म मेकर। बाद के आप देखो, शुरुआती कितनी अच्छी फिल्में बनाई उसने, बाद में भटक, पता नहीं क्या हो गया उनको। नहीं, मैं गुड फिल्म मेकर नहीं मानती उनको, बट टॉपिक पर क्या ना, अच्छी साफ सुथरी फिल्में बनाता था, लाइक सलमान खान। मैं आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ सलमान खान। तो मुझे सलमान इसलिए पसंद है कि एक तो कुछ सोचना नहीं पड़ता उसमें, भाई आएगा तो सब हो जाएगा। दूसरा, उसकी फिल्मों में गंदगी नहीं होती। उसकी फिल्मों में किसिंग सीन भी नहीं होते। बहुत रेयर, कहीं अगर कुछ कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज भाई इन चक्करों में नहीं पड़ता। वो जो करना होता है रियल लाइफ में कर लेता है। रियल लाइफ में वो बहुत आइडियल है। मुझे एक्चुअली लगता है कि करण जौहर तो ऐसी फिल्में बनाएंगे ही, ओटीटी में वो प्रिविलेज और ज़्यादा लेंगे लिबर्टी, बिकॉज मुझे ये समझ में नहीं आता, इफ़ करण जौहर belongs to LGBTQ community, then why always in his films he's just ridicules a gay person. उनके लिए मतलब जो गे पर्सन है या बाइसेक्सुअल है, वो अजीबो गरीब तरह के फैशन करके ऐसे मंडराते रहेगा कोई हीरो या हीरोइन के आसपास, आई मीन हीरो के आसपास। ऐसा तो होता नहीं है। मतलब वी शुड टेक दिस LGBTQ वेरी सीरियसली, दिस इज़ वेरी डेलिकेट। लेकिन हमेशा ही मतलब वो खुद को कहते हैं कि ही इज़ गे पर्सन, लेकिन उनके फिल्मों में जो दिखाया जाता है दैट इज़ टोटली कंट्राडिक्टरी, विच मेक्स मी ए नॉट फैन, नेवर एवर ए फैन ऑफ हिज वर्क्स। तो इसीलिए मैंने उनको बताया था कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। व्हेनेवर नो कमेंट्स। जी, we started with stories and I think it's time to conclude our session, क्योंकि सर के साथ हम लोग बैठेंगे तो 3-4 घंटा तो लगातार कहानी सुनते रहेंगे। पर इनका भी ध्यान रखिए सामने जो बैठे हैं। जी 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 जी। सो इफ आवर ऑडियंस हैव एनी
questions for Sir. Recently, yesterday, हमने प्राइम वीडियो पे एक टू एस्पिरेंट दैट इज फॉर यूपीएससी, हाउ टफ यूपीएससी का एग्जाम है, उसने अच्छा प्रेजेंट किया है। डीएम बनने के बाद में भी किसने क्या रोल किया है, आई थिंक वो सीरियल इज वेरी। ओटीटी की बात हम करते हैं तो ऐसा है कि कोविड के टाइम पे जैसे कि कुछ मूवीज़ हम सिनेमा हॉल जब बंद हो गए कोविड के टाइम पे, तो इट वाज द कंपल्शन कि दे हैड टू बी रिलीज्ड थ्रू ओटीटी। तो मुझे लगता है कि जो इंडियन ऑडियंस है तो उसी टाइम से ओटीटी बिकेम अ हाउस होल्ड थिंग, बिकॉज बिफोर दैट इट वाज लिमिटेड टू अ वेरी कन्फाइंड viewers, right? Those who had subscription to, but मैं खुद से ही मैंने I started, I think मैं पहला मूवी देखा था बुलबुल on Netflix. So it was during COVID times. So how do you think that actually played a part in making OTT one of a competitive platforms? It has started giving competition to cinemas, right? And some cinemas are directly being released on OTTs rather than on cinemas. So was it a kind of a compulsion or something that had happened because of external circumstances rather than something which was? सर मुझे ना एक बदमाशी सूझ रही है आपके जवाब देने में। जी मैं कर लूँ? प्लीज क्षमा करिएगा। ओटीटी ऑन अ सीरियस नोट, वो बहुत उस पर बहुत रिसर्च भी आ गए। 18 to 28% ऑफ द डाउनलोड ऑफ जस्ट बिकॉज द तालाबंदी और जो भी कहते थे उसको लॉकडाउन, है ना, उसने विस्तार दिया और ये वर्ल्ड वाइड दिया। Yes. इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, रसिया में भी हुआ, जापान में भी हुआ, यूएस तो सैचुरेट ऑलमोस्ट हो चुका था, इसलिए वहां 2 या 3% हुआ। बट यहां से मुझे लगता है कि कहते ना कि पहली नजर का प्यार था, लव एट फर्स्ट साइट, है ना। तो प्यार तो कुछ देख के ही हुआ होगा ना, या तो सुंदर होगा या सुशील होगा या धनवान होगा या बड़ी गाड़ियों वाला होगा। तो ये जो पहली नज़र का प्यार होता है ना, ये बड़ा धोखा देता है सर। क्योंकि जिस आधार पर आपने प्यार किया, अगर उससे बेहतर आधार मिल जाएगा तो आपका प्यार उधर चला जाएगा। जी है ना, बहुत सुंदर, ही इज वेरी हैंडसम इसलिए मैंने विवाह कर लिया। मोर हैंडसम दिख जाएगा तो आप उससे चले जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे कि नहीं जाओगे सर? डिपेंड करता है, depends on the person. Yes. तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑप्शन जब आ गए ना हमारे पास फिर, Absolutely, yes. और आप देखो उस समय एक और फेनोमेनल चीज हुई जिसको हमारे अकादमिक जगत ने नोटिस नहीं किया। उस समय फिर से रामायण और महाभारत दिखाई गया जी जी दूरदर्शन पर, विच ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ, मतलब ऑडियंस का सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे उसने। और इतना अनप्लैंड था सर, इतना अनप्लैंड था रामायण का, इतना भी किसी को याद नहीं था। ये यही समय था शायद, मुझे लगता है ना, मार्च वार्च का समय, रामनवमी भी उस समय आई थी। रामनवमी के दिन रावण जो है वो वनवास जा रहे थे, इतना भी ध्यान नहीं रखा गया था दूर, क्योंकि उस समय हमारे लिए ऐसा पैनिक क्रिएट हो गया था और जनता को किसी तरह इंगेज करना था, नहीं तो जनता सड़कों पे निकल सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो रामायण और महाभारत और एक और कोई 3 सीरियल दिखाए गए थे। रामायण ने तो सबके रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, बहुत खराब प्रिंट दिखाए गए, लेकिन फिर भी लोग उसी श्रद्धा भाव से उसको देखते रहे। तो जब कोविड खत्म हुआ तो जो 18 से 28% डाउनलोड हुआ था और जो विस्तार मिला था वो फिर धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि इन लोगों ने अपने सब्सक्रिप्शन बढ़ाने शुरू कर दिए। अब याद करिए, नेटफ्लिक्स का 200 रुपये मिनिमम है ना, वो अमेजॉन प्राइम का 1000 रुपीज़ पर ईयर है, जियो का विद एडवर्टीजमेंट विदाउट एडवर्टीजमेंट अलग अलग रेट है, और विद एडवर्टीजमेंट इतना इरिटेट करता है कि लोग और उस समय जब एडवर्टीजमेंट चल रहा होगा, जब आप इरिटेशन के पराकाष्ठा पे होंगे, तब नीचे आएगा यू कैन बाई विदाउट एडवर्टीजमेंट। गुस्से में लोग बाई कर देता है कि चलो यार 200 रुपये देने ना, उसका काम हो जाता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि जितना फायदा कोविड के समय हुआ था, बीच में डाउन हुआ,
अगर आप इसका अध्ययन करेंगे, फिर सेकेंड वेव में लोगों ने और डाउनलोड किए, क्योंकि सेकेंड वेव वॉज मोर डेंजरस। लोग खुद से घर में रहे थे। सेकेंड वेव में मुझे नहीं लगता कि कोई लॉकडाउन लगा था क्या? सेकेंड वेव में भी लगा था। खुद का सेल्फ, हाँ, गवर्नमेंट ने शायद नहीं लगाया था सेकेंड वेव में, ठीक है, अगर लगाया भी होगा तो सेकेंड वेव में फिर वो यूं है ग्राफ उसका, अगर आप देखेंगे तो हमें क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट हम एडिक्ट होने लगे उसको। क्या देखें, अच्छा अब हमने 500 रुपये का सब्सक्रिप्शन साल भर का ले लिया है, तो चलो देख लेते हैं कुछ। अच्छा, उस समय कुछ अच्छी फिल्में भी आई। एक एयरफोर्स वाली फिल्म आई थी, नाम भूल गया मैं, जिसमें गुंजन सक्सेना, अच्छी फिल्म थी। एक अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी कठपुतली, और एक लखनऊ की कहानी वाली, शायद कठपुतली नाम था उसका। तो ये सब कई अच्छी, गुलाबो सितारो, हाँ, ये सब अच्छी फिल्में थी। तो अच्छी चीजें भी आई थी उस समय, उस दौर में, क्योंकि उस समय तो कुछ बन नहीं रहा था। उस समय ओटीटी पर एक अच्छा काम ये हुआ था कि जॉइंटली कैसे लोगों ने प्रोडक्शन किया ऑनलाइन। जैसे मंजरी फडनीस एक है, उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी हिंदी को लेके, उसने शॉर्ट फिल्म बनाई म्यूजिक को लेके, और उन्होंने सबने अपने अपने दिखाने शुरू कर दिए। अब तो सर नई क्रांति आने वाली है, ओटीटी प्लेटफॉर्म छोड़ दीजिए, अब तो यूट्यूब पर क्रांति होने वाली है। आमिर खान अपनी फिल्म ओटीटी पर रिलीज नहीं कर रहा है, यूट्यूब पे कर रहा है विद 50 रुपीज पर वॉच। वो ज्यादा स्मार्ट मूव है, क्योंकि यूट्यूब तो हर किसी के मोबाइल में है। अब यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हम इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते सर। कई बिहार में जहां मैं रहता हूं वहां फेसबुक नहीं है तो आपका सोशल स्टेटस ही नहीं है। तो अलग अलग प्रदेशों में है। अब दिल्ली मुंबई में जाइए तो फेसबुक को जो जेन नेक्स्ट है वो कहते हैं इट्स वेरी एलएस। यार बहुत एलएस है यार वो। अब मुझे तो एक सप्ताह तक सर एलएस ही नहीं समझ में आया। फिर मैंने किसी पूछा भाई से कि एलएस क्या होता है, लो स्टैंडर्ड। तो वहां सब इंस्टा पर हैं। इंस्टा आर यू ऑन इंस्टा अंकल? नहीं हूं मैं। ओ शिट अंकल, यू मस्ट बी ऑन इंस्टा। तो अब ये हो गया है। तो अब आने वाले दिनों में इंस्टा पे भी फिल्में दिखेंगी आपको, मुझे लगता है। अब मैं अभी जैसे देखना चाह रहा था गैंग्स ऑफ वासेपुर, मुझे कुछ लिखना था। सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हैं, बट आफ्टर द पे वॉल यू हैव टू पे 199 रुपीज टू वॉच दैट मूवी। आपने अगर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले भी रखी है तब भी आपको 199 देना है। तो आने वाला समय ऐसा भी आने वाला है कि आपको, जैसे एप्पल का जो प्लेटफॉर्म है उस पर हर चीज़ फ्री नहीं है। वो जैसे जैसे लोकप्रिय होगा ये पेमेंट के फिल्टर्स लगने लगेंगे आपको। जैसे अभी अमेजोन में, अभी प्राइम में दे आर डूइंग दैट। सब ने कर दिया धीरे धीरे। I don't have any questions as such or anything, just two things. The first thing is, I see in you the metaphor of your own statement at the beginning. When you said the purpose of cinema is to entertain, and that is what you have done thoroughly. That you have entertained us thoroughly, but you have also made us think at the same time. Okay? And the next relates to your OTT. I mean, I think this is also a kind of, your intersemiotic study, isn't it? And this actually, I'm being reminded of this book, Aparajita or Dhurjati, you might be knowing of Familiar Sensation of Strangeness. Pradeep Acharya. I believe you were there at the book release. When I was, Yes, you were also there. And there, he's, I mean, the very title itself is, quite catchy and quite, intriguing. Familiar Sensation of Strangeness.
So this is what we are exactly experiencing in this OTT. Okay. And he also makes a very interesting statement there. This translation business, this is all a matter of translation from one media to another media. So he says it's like, translation is like local wine. Shipped abroad, it loses its harvest and its history. That's it. Thank you. On behalf of the foundation, I would like to sincerely thank author Anand Vijay and conversationalist today, Ms. Aparajita Pujari, for a wonderful and engaging evening. We sincerely thank Oil India Limited for the continued support in advancing the foundation's vision of fostering meaningful literary initiatives across the Northeast. A warm thank you as well to Vivanta Guwahati, our hospitality and venue partner, for hosting us so graciously and providing the perfect setting for today's gathering. And lastly, we extend our heartfelt thanks to all our esteemed guests. Your presence truly elevates the spirit of this gathering. It is your engagement and shared love for literature that bring warmth, meaning, and life to evenings like this. India's cultural richness lies in the harmony of its diverse traditions and communities, each adding depth to its collective identity. As a reflection of this spirit, and in appreciation of our enduring artistic legacy, we are pleased to offer these tribal masks to the author and the conversationalist as a thoughtful token of our gratitude. The pair of tribal masks presented today are handcrafted bamboo masks from the Naga tribes of northeastern India used in traditional dance, rituals, and festivals. These masks are carved with intricate designs and symbolic imagery to represent tribal myths, spirits, or powerful beings. They are admired for their artistry, cultural symbolism, and craftsmanship passed down through generations. I would now like to request Mr. Gautam Sharma to felicitate our author Anand Vijay. Mr. Pranjal Saikia to felicitate Ms. Aparajita Pujari, our conversation. Thank you and good night.